Welcome back to Biology on Earth. We are discussing receptor tyrosine kinase. So there are different pathways by which receptor tyrosine kinase activate cell signaling. So यहाँ पे हमने different pathways discuss किए हैं receptor tyrosine kinase के, जिसका जो last pathway है उसको हम बोलते हैं PI3 kinase pathway. So जो PI3 kinase pathway है इसमें हमने इंसुलिन का pathway देखा है कि इंसुलिन किस तरीके से लिगेंड के तौर पे काम करता है और क्या सिग्नलिंग एक्टिवेट होती है. अब सेकंड इसमें हम डिस्कस करेंगे mTOR पाथवे, जो कि एक इंपॉर्टेंट पाथवे है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज mTOR? M इज मैमेलियन टॉर. सो मैमेलियन टॉर क्या है? इट इज मैमेलियन टारगेट ऑफ rapamycin. Rapamycin is a type of drug which is used to prevent the resection of tissue, or we can say any type of resection of the bone marrow transplant. So the patients in which bone marrow transplant or different organs are transplanted, they are subjected to various type of drugs in order to prevent the resection of those transplants, and one of the drug is rapamycin. So here mTOR is mammalian, means ये mammals में होता है, target of rapamycin, and it regulate different functions in cell. First of all is cell proliferation. Cell proliferation is cell division. Second is autophagy, means phagocytosis of self. ठीक है. Then apoptosis, cell death, by participating in multiple signaling pathways in the body. Secondly, according to different studies, the mTOR is associated with cancer, arthritis, insulin resistance. Now, what is cancer? Cancer is unregulated growth of cells, or which we can say the malignant tumors, means unregulated growth of cells. So here mTOR help in cell proliferation, and it is over expressed in case of cancer cells. So it help in proliferation of cancer. Then arthritis, because it activate different inflammatory response in immune cells and non-immune cells. Then it help in insulin resistance. Then osteoporosis. Osteoporosis is decrease in mineral or bone mineral density in bones. Then it is often activated in tumors, as we have already discussed in cancer. Then it regulates gene transcription, it regulates cell proliferation and immune cell differentiation. Now we have already discussed PK3 kinase pathway of receptor tyrosine kinase. So this pathway, which is called mTOR pathway, it also use the intermediate which is called PI3 kinase. So that's why it come under the pathways of receptor tyrosine kinase, which are called PI3 kinase pathway. So this is the growth factor. जब कोई भी growth factor आता है जो कि किसी टिश्यू की प्रोलिफरेशन या डिफरेंशिएशन के लिए होता है, तो यहाँ पे जो है ये एक्टिवेट होते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज. और आगे जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि जब इनकी एक्टिवेशन होती है तो इट लीड्स टू डाइमराइजेशन ऑफ रिसेप्टर, देन ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ रिसेप्टर, एंड फाइनली देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ PI3 kinase. So PI3 kinase help in conversion of PIP2 into PIP3. This PIP3 help in activation of AKT. Now there are two roles of AKT. First of all, it inhibit or inactivate TSC2. So here AKT is a type of kinase. It help in phosphorylation of this TSC2. ये जो TSC2 है ये किसके लिए काम करता है? ये इनएक्टिवेट फॉर्म में रखता है रैब जीटीपी को. तो यहाँ पे जब इसकी इनएक्टिवेशन हो जाएगी तो जो रैब जीटीपी है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में चला जाएगा. अब जो यहाँ पे रैब जीटीपी है ये एक्टिवेट करता है mTOR कॉम्प्लेक्स 1 को, और इन रिस्पॉन्स यहाँ पे सेल ग्रोथ होती है. नाउ जो mTOR है इसमें दो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. एक है mTOR कॉम्प्लेक्स 1, दूसरा है mTOR कॉम्प्लेक्स 2. दोनों की सिग्नलिंग को हम डिस्कस करेंगे. दोनों के रिस्पॉन्स में मींस क्या सिग्नल है जिनके रिस्पॉन्स में सिग्नलिंग एक्टिवेट होती है, और सिग्नलिंग के एंड पे क्या रिजल्ट होता है. तो सबसे पहले अगर हम mTOR C1 की बात करें, मींस mTOR कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये एक्टिवेट होता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ फैक्टर्स, अमीनो एसिड्स एंड एनर्जी, और ये इनहिबिट होता है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. नाउ जो mTOR C1 है इसके साथ 5 डिफरेंट प्रोटीन्स काम करते हैं. कौन से हैं ये प्रोटीन? एक तो mTOR हो गया,
दूसरा यहाँ पे जो प्रोटीन है इट इज कॉल्ड द डेप्टर। जो डेप्टर है ये mTOR को इनहिबिट करता है। यहाँ पे डेप्टर इज अ ट्यूमर सप्रेसर दैट इनएक्टिवेट mTOR C1 एंड C2। मींस हमने अभी देखा कि जो mTOR है ये सेल की प्रोलिफरेशन करवाता है। तो कैंसर में क्या होता है या फिर ट्यूमर्स में क्या होता है कि अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की। तो कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे जो डेप्टर है ये टाइमली mTOR को इनएक्टिवेट कर देता है ताकि जो सेल डिवीजन है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये रेगुलेटेड मैनर में रहे। उसके बाद जो दूसरा इसके साथ प्रोटीन काम करता है ये है जी बीटा एल। जो जी बीटा एल है इट इज कॉल्ड जी प्रोटीन बी सब यूनिट लाइक प्रोटीन एंड इट हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ mTOR रेप्टर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो mTOR C1 है इसके साथ जो प्रोटीन रेगुलेटरी प्रोटीन काम करता है इट इज कॉल्ड रेप्टर। अब यहाँ पे रेप्टर क्या है, इट इज रेगुलेटरी एसोसिएटेड प्रोटीन ऑफ mTOR। मींस ऐसा प्रोटीन जो कि mTOR की रेगुलेशन में काम करता है, इसके साथ एसोसिएटेड होता है। उसके बाद ये हो गए 4 प्रोटीन्स। अब यहाँ पे एक 5th प्रोटीन है विच इज कॉल्ड PRAS40। जो PRAS40 है ये रेप्टर को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे जो PRAS40 है इट इज प्रोलिन रिच AKT सबस्ट्रेट जो कि रेप्टर को इनहिबिट करता है। मींस mTOR की सिग्नलिंग को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे जो डेप्टर हैं और जो PRAS40 है ये mTOR की सिग्नलिंग को इनहिबिट करते हैं और ये वाले जो सभी प्रोटीन्स हैं ये एक्टिवेट करते हैं। तो ये हो गए 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो कि mTOR C1 कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। mTOR C1 कॉम्प्लेक्स में 1 2 3 4 5 ये सारे प्रोटीन्स होते हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स 1 बोला जाता है। अब यहाँ पे जो mTOR C1 कॉम्प्लेक्स है ये 2 तरीके से फंक्शन करता है। सबसे पहले ये इनहिबिट करता है यहाँ पे 4EBP1 को बाय इट्स फॉस्फोराइलेशन और ये एक्टिवेट करता है S6K1 को क्योंकि इसकी भी फॉस्फोराइलेशन होती है। अब यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन है इसके लिए कुछ काइनेज चाहिए। जब भी फॉस्फोराइलेशन होगी तो काइनेज के साथ फॉस्फोराइलेशन होगी। तो यहाँ पे जो काइनेज इन दोनों की फॉस्फोराइलेशन करता है इट इज कॉल्ड AGC काइनेज। अगर इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे S6K1 एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन होती है। मींस जो mTOR C1 कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेट होता है किसी ग्रोथ फैक्टर अमीनो एसिड और एनर्जी के साथ और इसके रिस्पॉन्स में सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन होती है। ठीक है, अब दूसरा कॉम्प्लेक्स है mTOR C2 कॉम्प्लेक्स। जो C2 कॉम्प्लेक्स है इसमें 6 डिफरेंट प्रोटीन्स काम करते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो हैं दोनों में सिमिलर हैं और कुछ डिफरेंट हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये ग्रोथ फैक्टर्स के रिस्पॉन्स में ही एक्टिवेट होता है। तो जब ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे आते हैं तो mTOR एक्टिवेट होता है। ये जो है ये डाउन सिग्नलिंग है mTOR की, मींस mTOR के आगे क्या रिस्पॉन्स हो रहा है। जो इसकी अपस्ट्रीम सिग्नलिंग है ये हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो दोनों के लिए जो अपस्ट्रीम मींस जो यहाँ पे सिग्नलिंग ऊपर आएगी ये पाथवे ये सेम ही रहेगा और जो डाउनस्ट्रीम mTOR से नीचे वाली सिग्नलिंग है ये दोनों के लिए डिफरेंट है। सो यहाँ पे क्या है, जो mTOR है ये 6 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स का बना होता है जो mTOR C2 कॉम्प्लेक्स है। नाउ ये जो mTOR C2 कॉम्प्लेक्स है इसका जो रेगुलेटरी प्रोटीन है इसे हम बोलते हैं रिक्टर। जो रिक्टर है इट इज कॉल्ड दी रेपामाइसिन इनसेंसिटिव कंपेनियन ऑफ mTOR। उसके बाद यहाँ पे MSIN1 प्रोटीन जो है ये काम करता है। यहाँ पे ये जो है ये डेप्टर के साथ बाइंड करता है। ठीक है, डेप्टर का हमने पहले देखा है, जी बीटा एल भी देखा है। और ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये AKT को एक्टिवेट करता है, SGK1 को एक्टिवेट करता है और प्रोटीन काइनेज C अल्फा को एक्टिवेट करता है। तो जो यहाँ पे जो तीनों प्रोटीन्स हैं इनकी फॉस्फोराइलेशन में सिमिलरली AGC काइनेज ही इन्वॉल्व होते हैं और इनके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो एक्टिन साइटोस्केलेटन है इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। मींस एक्टिन साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइज होने लगता है और सेल प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल में ये हेल्प करते हैं। So this is all about mTOR pathway. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.